Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Chalk, Chai and Zindagi. Today we will learn Letter to the Editor, an important 5-mark question in class 12 English core. I will explain the correct format, the body, and a few examiner's tips to help you score better. So let's begin. Letter to the Editor. It is for 5 marks, format is for 1 mark, content is for 2 marks, expression is for 2 marks. Let's see the format first. Sender's address, everything will start from left hand side and it will end also from the left hand side. This is called block style, which you have to follow, right? So sender's address, space date, space the receiver. Who's the receiver? You have to, because it's a letter to the editor, so the editor will be the receiver. Space salutation, sir, madam, space subject, leave one line, then comes the body of the letter or the content, and then it is divided into paragraph 1 where you will introduce yourself and the issue and the purpose of writing the letter. In para 2 you will give the reasons and solutions, detailed one. Para 3 will have suggestions asking for fulfilling the needed tasks. Then you will give space. There will be complimentary clause, right? Yours truly, yours sincerely. Then you will write down your name. Is it clear to you? These are the 8 points of the format which you have to keep in mind in order to get 1 mark in the format. Now my tips for content: introduction, causes, effect, suggestions, and balanced opinion. Always give balanced opinion, right? Let's see how to develop the content. It's very easy to develop the content once you know the points, value points, right? See, in paragraph 1, you will give the introduction. What is the problem? Why I am writing this letter? This is the first one. So, fixed language, set language hai. Through the column of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of concerned authorities. Then you will write down the problem. So this is a set language through the column of your esteemed newspaper, right? This is the official kind of language which you have to write. ये याद कर लेना बेटा अच्छे से. Paragraph 2 हो जाएगा. Why has the problem arisen? How it is affecting the people? I have already told you. You have to give the causes, reasons, right? Example. ये मैंने 5-6 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि जो भी टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग हम वी कैन यूज इट. Example: lack of awareness, carelessness, poor implementation of rules, environmental damage, health hazards, road accidents. For example, अगर हम road accidents की बात कर रहे हैं तो उसमें हम कहेंगे कि क्या कारण है, what are the reasons why मतलब so many road accidents are taking place. तो उसमें ये वाले points यूज हो सकते हैं थोड़े से. lack of awareness, carelessness of the people, poor implementation of the rules. ये आप कह सकते हो, ठीक है ना. और इसमें फिर आपको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा कि केयरलेसनेस है, लोग रेड लाइट जंप कर जाते हैं. पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स क्या है कि बड़े बड़े एक्सीडेंट करके भी लोग मनी देकर ब्राइब द अथॉरिटीज एंड देन दे कम आउट, राइट. और दूसरा, अब इसी कारण सो मेनी रोड एक्सीडेंट्स आर टेकिंग प्लेस. सो 1 or 2, 3 पॉइंट्स यू कैन टेक एंड इन ईच पैराग्राफ शुड हैव एटलीस्ट 3 वैल्यू पॉइंट्स. नाउ in last paragraph you will be writing how you these are the problem faced by by us and what are the solutions you are offering. Awareness campaign सबके लिए यूज हो सकता है, लोगों को अवेयर करो. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, ये भी हम यूज कर सकते हैं. किस किस जगह पर? रोड एक्सीडेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, है ना. पॉलिथीन बैग्स को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं. पब्लिक कोऑपरेशन जरूरी है, ये भी लिख सकते हैं. गवर्नमेंट एक्शन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हो जब आप अपने सॉल्यूशंस लिख रहे हो, क्योंकि सोशल इशू होगा जो हम लेटर टू द एडिटर कहेंगे. जो जो प्रॉब्लम्स हैं हम फेस कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है. इट कैन बी रोड एक्सीडेंट, इट कैन बी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इट कैन बी बुलिंग, इट कैन बी यूसेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. कितने सारे टॉपिक्स होते हैं जो बेटा आते हैं, तो आपने ये सब चीजें ध्यान में रखनी है. एंड नेवर एंड योर लेटर विद ओनली क्रिटिसिज्म एंड विद होप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमेशा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी लेनी है कि हमारे पर भी बहुत डिपेंड करता है. गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द पीपल, isn't it?
सो वो आपने उसके इसके बारे में लिखना है. नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन. बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है CBSE का. लेट्स सी. You are Ria of 45 Green Park, New Delhi. The increasing use of plastic bag has become serious environment concern. Write a letter to the editor of the Hindustan Times expressing your concern and suggesting measures to reduce plastic pollution. ना अगर आप क्वेश्चन को देखते हो उसमें आपसे दो चीजें पूछे गए हैं कि एक तो प्लास्टिक यूसेज जो है सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट है और उसमें कंसर्न आप अपना कंसर्न आप किस चीज के लिए वरीड हो और आपने सजेशंस भी देनी है. सजेस्टिंग मेजर्स टू रिड्यूस द प्लास्टिक पोल्यूशन. तो क्वेश्चन देखो उन्होंने आपसे ऑलरेडी वो सब चीजें पूछ ली हैं जो आपने अभी डिस्कस की थी. राइट. सो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस, इसमें जो है रिया है लेटर लिख रही है. सेंडर एड्रेस हो गया 45 ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली. देन स्पेस, देन डेट, स्पेस, लेटर किसको लिख रहे हैं, हु इज द रिसीवर, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली. स्पेस, देन सब्जेक्ट राइजिंग प्लास्टिक पोल्यूशन एंड नीड फॉर इमीडिएट एक्शन. दिस इज योर सब्जेक्ट, ये ऑलरेडी आपको कंटेंट में दिया हुआ है. देन सैल्यूटेशन सर मैडम. देन यू विल स्टार्ट विद द स्पेस देके आप फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दोगे. थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज and the general public towards the increasing use of plastic bags which have become a major threat to our environment. ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया. आप किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो. सेकेंड पैराग्राफ में हम कॉजेज और इफेक्ट्स करेंगे, जैसे कि एक्सेसिव यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हैव मेड द सिचुएशन अलार्मिंग. सिंस प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, it remains in the environment for hundreds of years, right? It clogs the drains, pollutes rivers and oceans, and harm animals that often mistake it for food. As a result, it poses a serious threat to both the environment and the human health. ठीक है बेटा. अब देखो आपने उसमें जो हमने कॉजेज दिए हैं तो हमने 4-5 कॉजेज दे दिए हैं. तो इसमें कहीं भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी 3-4 रीजंस दे दिए हैं. तो कम से कम 3 या 4 वैल्यू पॉइंट्स आप जरूर दोगे पैराग्राफ में. अब हम सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं. वी विल बी डिस्कसिंग सजेशंस कि इन चीजों को हम कैसे रोकें. राइट. तो द गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक एंड इनकरेज द यूज ऑफ क्लोथ एंड जूट बैग. ये आपने पहली सजेशन दे दी. सेकेंड है अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड residential areas to educate people about eco-friendly alternatives. Awareness फैलाने के लिए आपने बोल दिया. सेकंड पार्ट, every citizen must also act responsibly by reducing the use of plastic in daily life. ठीक है. ये थर्ड पॉइंट हो गया कि हमें भी इस पर काम करना चाहिए. Then collective efforts by the government and the public can help create a cleaner, greener and healthier environment for the future generation. सारे मिलकर ही इसको इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं. तो उसमें आपने एंड में एक बैलेंस्ड सिचुएशन, बैलेंस्ड आपने एडवाइस दे दी है. बहुत क्रिटिसाइज भी नहीं किया लेकिन बैलेंस्ड ओपिनियन दे दी. अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. देन लीव वन लाइन थैंकिंग यू. देन लीव वन लाइन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स सिंसियरली या योर्स लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे एंड देन यू विल राइट योर नेम रिया. ओके. सो फॉर्मेट के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए. कंटेंट में मैंने आपको बता ही दिया. इंट्रोडक्शन, कॉजेज, उसके रिजल्ट्स जो हैं, रीजंस और सजेशंस जो हैं आप उसको एंड में लिख सकते हो. सो आई होप टुडेज लेसन लेटर टू द एडिटर has become easy for you. Keep practicing because success in exam doesn't come from luck. It comes from preparation. Learn a little daily. Believe in yourself and give your best. See you in the next video where we will be doing application for job, right? Thank you and happy learning.